السلام علیکم بھائی، یہ رہا ہمارا تمہارا شاہین کلب۔ ارے یہ ہمارے سدھو بھائی کہاں ہیں؟ انہوں نے آج چھٹی کر لی۔ کیا ہوا، کٹی کر لی؟ ارے نہیں، یہ نہ کہیے، سدھو بھائی اتنے پیارے انسان ہیں کہ وہ کبھی کسی سے چھٹی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا جی عابدی بھائی، تو پھر سنیے کہ آپ کا یہ خیال غلط ہے۔ کیا مطلب؟ کیا سدھو بھائی نے کبھی کسی سے کٹی بھی کی تھی؟ جی ہاں، اس کا قصہ ہمیں بھی سنوائیے عابدی بھائی۔ ضرور سنوائیں گے، لیکن پہلے اپنے سننے والوں کو یہ بتا دیں کہ آج ہم اس کے علاوہ اور کیا سنوائیں گے۔ کوئی نغمہ؟ عام معلومات کے 5 سوال۔ دیکھا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی۔ پروین بھائی جی، آپ کچھ نہیں بولی، کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے عابدی بھائی کہ آج آپ مقابلہ نمبر 14 میں انعام پانے والی کچھ اور کہانیاں سنوائیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ شاہین کلب کے مقابلہ نمبر 14 میں جو 30 سب سے اچھی کہانیاں چنی گئی ہیں، ہم وہ کہانیاں لکھنے والوں کے ناموں کا آج اعلان کریں گے۔ ان میں سے 5 بہترین کہانیاں جو انتظار حسین صاحب نے چنی تھیں اور جن میں سے 3 کہانیاں پچھلے ہفتے سنوائی جا چکی ہیں، وہ 5 کہانیاں لکھنے والوں کے نام آج ہم دوبارہ سنائیں گے۔ کیوں؟ لیکن نا شاید پچھلے ہفتے ان میں سے کوئی پروگرام سن نہ سکا ہو۔ اچھا خیال ہے عابدی بھائی۔ تو پہلے کیا سنائیں؟ میں بتاؤں؟ ہاں بتاؤ۔ عام معلومات کے 5 سوال۔ لو بھائی، اب تمہاری عام معلومات کی آزمائش۔ دردانہ تم سے 5 سوال پوچھیں گی، یہ سوال سنتے جاؤ اور ان کے جواب دیتے جاؤ۔ کچھ دیر بعد ہم تمہیں ان سوالوں کے صحیح جواب بتا دیں گے۔ ویسے آقا بھائی، آج کے 5 سوال چھوٹے بچوں کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں۔ اچھا بھائی، پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری اس دنیا میں سمندر زیادہ ہے یا خشکی زیادہ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جاپان کے سکے کا کیا نام ہے؟ روبیل، ین یا گلڈر؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ تاج محل کے اندر جو 2 قبریں ہیں، ان میں کون دفن ہے؟ آج کا چوتھا سوال یہ ہے کہ شہر لاہور کس دریا کے کنارے آباد ہے؟ اور آج کا 5واں سوال یہ ہے کہ چیون لائی کس ملک کے وزیر اعظم تھے؟ ہاں بھائی، تو یہ ہوئے 5 سوال۔ اب ان کے صحیح جواب سن لو۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہماری دنیا میں خشکی کم اور سمندر زیادہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جاپان کے سکے کا نام ہے ین۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تاج محل کے اندر مغل شہنشاہ شاہجہاں اور اس کی بیوی ممتاز محل دفن ہیں۔ چوتھے سوال کا جواب آسان ہے، شہر لاہور دریائے راوی کے کنارے آباد ہے۔ اور 5ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ آن جہانی چیون لائے چین کے وزیر اعظم تھے۔ مجھے پتا تھا کیا؟ کہ میرے 5 جواب وہ ہوں گے۔ غلط؟ غلط۔ اچھا بھائی، مقابلہ نمبر 14 میں انعام پانے والوں کے نام۔ سب سے پہلے تو وہ 5 نام جن کے مضمون سب سے اچھے قرار دیے گئے ہیں۔ فیڈرل بی ایریا کراچی کی نازیہ حسین، دائرہ دین پناہ مظفر گڑھ کے شیخ خورشید خالد، ریاض سعودی عرب کی مسز توفیق خان، میرپور بٹھورو سندھ کے ساون شہزاد، اور ماہم بمبئی کی ساجدہ محمد اسماعیل۔ ہاں بھائی، تم سب کو مبارک ہو۔ واقعی۔ اب وہ باقی 25 نام جن کے مضمون منتخب ہوئے، یعنی 4000 مضامین میں سب سے اچھے سمجھے گئے۔ ہاں، اورنگی ٹاؤن کراچی کی انجم آرا، حاصل پور ضلع بھاولپور کے اظہر امین، نطقانی ڈیرہ غازی خان کی تزین فاطمہ، العین ابو ظہبی کے ارشد تنویر، فیڈرل بی ایریا کراچی کی بیبی رخسانہ یاسمین، پاک پتن ساہیوال کے نور احمد تاج، خیر پور میر سندھ کے اعظم علی سومرو، اولہن پور سارن بہار کی عفت احتشام، بستی سانگیہ رحیم یار خان کے خلیل احمد، گلشن عثمان نارتھ کراچی کی رشیدہ قمر بانو، فیڈرل بی ایریا کراچی کے فہد علی خان، سورج میانی ملتان کے نصرت علی صدیقی، عارف والا ساہیوال کے شفیق انور، تحصیل چوک بنو کے ثناء اللہ خان، کبیر والا خانیوال کے صدف منیر،
बल्दिया कॉलोनी चिश्तिया के फारूक साजिद, शारजा की नौरीन इस्माइल, डेरा गाजी खान के मोहम्मद कासिम उस्मानी, लतीफाबाद हैदराबाद के सैयद मोहम्मद मुनीर, टंडूजाम सिंध के मोहम्मद तारिक, कोयटा के जफर इकबाल, गोठ आरिफ वाला लसबेला के अब्दुल समद लासी, सरफराज कॉलोनी हैदराबाद की फरहाना मुबारक, रोहड़ी सिंध के मोहम्मद इब्राहिम चौहान और कोरंगी कराची के अहमद रजा। अच्छा भाई, आज भी हम मुकाबले नंबर 14 की कुछ मुंतखब कहानियां सुनवाएंगे। ये पहली कहानी मार्केट चौक मीरपुर बठोरो सिंध के सावन शहजाद ने लिखी है और इसका उन्वान है किसकी आवाज। मुझे खूबसूरत जानवर और परिंदे देखने का बहुत शौक रहा है। कुछ बरस पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ हैदराबाद का रानी हो गया कि नाजिया बेटी, ये बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया, इसको चलकर इसकी जगह पर छोड़ाओ, वरना ये अकेला बहुत रोएगा और इसको दूध कौन पिलाएगा। थोड़ी देर बाद हम उस बच्चे को वापस उसी जगह पर झाड़ी में रखकर चले आए। उसे छोड़कर आने के बाद बहुत दुख हुआ। हमने सोचा कि जिस तरह हम अपनी अम्मी और पापा से जुदा होकर खुश नहीं रह सकते, इसी तरह वो बच्चा भी अलग रहकर बहुत उदास रहेगा। ये सोचकर हम अपने बिस्तर में लेटकर सो गए आराम से। लेकिन वो बच्चा अभी तक याद आता है। काश हम उस बच्चे को पाल सकते। अच्छा, तो इंतजार हुसैन साहब, अब आप बताइए कि नाजिया हुसैन की ये कहानी आपको कैसी लगी। साहब, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक अंदाज़े बयान और फिर आखिर में पता चलता है कि ये बच्चे जिसे बिल्ली का बच्चा समझ रहे हैं वो असल में चीते का बच्चा है। अच्छा, उसमें तो एक पहलू ये निकलता है कि बच्चे सब मासूम होते हैं, ख्वाह वो दरिंदे हो ही के बच्चे क्यों ना हो, जब तक वो बच्चे हैं वो मासूमियत की मंजिल में है। और ये जो नुक्ता इसमें से निकलता है कहानी से, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा साहब, नाजिया हुसैन के बाद ये अगली इनाम पाने वाली कहानी दायरा दीन पनाह मुजफ्फरगढ़ के शेख खुर्शीद खालिद ने लिखी है। इसका उन्वान है घोड़ा, जानवर और दोस्त, और इसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। शेख खुर्शीद खालिद अपनी इस कहानी में लिखते हैं, मैं गांव में रहता था और स्कूल मेरे घर से 4 मील दूर था। बस या टांगे पर जाने के लिए मेरे पास पैसे न थे। अलबत्ता घर में दरमियाना कद का एक घोड़ा था। मैं उसी पर सवार होकर स्कूल जाता और उसे वहीं बांधकर जमात में चला जाता। वक्फे के दौरान मैं घोड़े के आगे चारा डाल देता था और उसे थपक कर दोबारा पढ़ने चला जाता था। एक रोज तो मैं उसे चारा देने निकला तो देखा कि घोड़ा गायब है। जमात में आया तो पता चला कि 2 शरीफ लड़के भी गायब हैं। मुझे यकीन हो गया कि वो बेचारे घोड़े की सवारी काट रहे होंगे। आखिर छुट्टी का वक्त हो गया और दोनों लड़के नहीं आए। अलबत्ता मैं बाहर निकला तो देखा कि घोड़ा वहीं खड़ा है जहां मैं उसे हर रोज बांधा करता था। बिल्कुल यूं लगा जैसे वो खड़ा मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं खामोशी से घर आ गया। अगले रोज स्कूल में वही दोनों लड़के मिले। दोनों बहुत शर्मिंदा थे। मेरे पास आकर कहने लगे कि कल हम तुम्हारा घोड़ा लेकर दरिया की सैर को चले गए थे। घोड़ा हमें सैर कराता रहा, लेकिन जो ही स्कूल की छुट्टी का वक्त करीब आया, घोड़ा अड़ गया और आगे चलने से इनकार कर दिया। मजबूरन हमें उतरना पड़ा। हमारा उतरना था कि घोड़े ने वापस स्कूल की तरफ दौड़ लगा दी और जब हम 6 मील पैदल चलते और बढ़ते खपते वापस आए तो लोगों ने बताया कि घोड़ा ऐन छुट्टी के वक्त आया और तुम्हें लेकर घर चला गया। यह किस्सा सुनाकर दोनों लड़कों ने मुझसे माफी मांगी। मैंने हंसकर कहा कि माफी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं, घोड़े से मांगो। दोनों ने घोड़े के गले में बाहें डाल दी। उसके बाद से पक्के दोस्त हो गए हम तीनों, नहीं हम चारों। अच्छा, तो इंतजार हुसैन साहब, अब आप बताइए कि शेख खुर्शीद खालिद की ये कहानी आपने क्यों चुनी? हाँ, ये तो एक तो रिवायती रिश्ता घोड़े से इंसान का चला आ रहा है नस्लों से। अब इन्होंने बिल्कुल यानी एक ऐसी सतह पर जो एक बच्चे के शऊर की सतह पर, उस तर्ज एहसास की सतह पर जहाँ बच्चे
जीते हैं, उस सतह पर इस मौजू को लिया है उन्होंने। और घोड़े और उसका जो नौजवान का और उस बच्चे का रिश्ता है वो बड़ी खूबी से हमारे सामने आता है। अच्छा साहब, शेख खुर्शीद खालिद के बाद ये अगली कहानी रियाज सऊदी अरब की मिसेस तौफीक खान की है और इसका उन्वान है चंपा। शहर लखनऊ के महल्ले निशादगंज में मेरी वालदा एक ऐसे घर में रहती थी जिसमें शहतूत का एक ऊंचा और घना दरख्त था। मेरी वालदा, जिनको उर्फ़े आम में सब बाजी अम्मा के नाम से पुकारा करते थे, महल्ले के मुसलमान बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाया करती थी और इब्तिदाई दीनी तालीम दिया करती थी। महल्ले का शायद ही कोई घर हो जहाँ का कोई न कोई बच्चा कुरान पाक पढ़ने ना आता हो। जिन दिनों शहतूत का मौसम होता तो बच्चों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो जाता। इन्हीं कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चों में से किसी बच्चे को गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा कहीं से मिल गया, जिसने लाकर मेरी छोटी बहन नफीस को दे दिया। बच्चा बहुत ही छोटा और कमजोर था। नफीस ने जूते के खाली डिब्बे में रुई बिछाकर उसके लिए बिस्तर तैयार किया और रुई की बत्ती से उसको दूध पिलाकर डिब्बे में लिटा दिया। डिब्बे के ढकने में से चंद सुराख हवा जाने के लिए कर दिए। बच्चा जल्द ही इस काबिल हो गया कि वो रुई से दूध पीने के बजाय दांतों से कतर कर चीजें खाने लगा और वालदा और बहन से मानूस हो गया। वो सारे घर में भागा भागा फिरता और जब उसे खाने की कोई चीज दिखाई जाती तो दौड़ कर आता और चीज लेकर गोद में घुस कर बैठ जाता। नफीस ने उसका नाम चंपा रख दिया। चंद दिनों के बाद चंपा के रवैये में तब्दीली आने लगी। अब वो डिब्बे में रहने के बजाय शहतूत के दरख्त पर रहने लगी और शहतूत की सबसे ऊंची शाख पर उसने अपना घोंसला बना लिया। दूसरी तब्दीली उसमें ये आई कि वो किसी अजनबी बच्चे को घर में ना आने देती। अगर किसी बच्चे का भाई या बहन आ जाते तो वो तेजी से दरख्त से नीचे आती और नए बच्चे को काट कर भाग जाती। शुरू में तो वो बच्चों को काटती थी और बाद में उसका शिकार बड़े भी होने लगे। लोग वालदा के घर आवाज देकर आते। वालदा हाथ में एक पतली सी छड़ी लेकर आने वाले शख्स को अपने साथ घर के अंदर ले जाती। चंपा इस दरमियान दरख्त से नीचे उतरकर तने के पास एक दो शाखे पर बैठ जाती और मुसलसल गुस्से से किट किट की आवाजें निकाला करती जब तक आने वाला शख्स चला न जाता। चंपा बेचैनी से कभी ऊपर जाती कभी नीचे। अगर शामत का मारा कोई शख्स बगैर आवाज दिए आ जाता तो चंपा दरख्त के ऊपर ही से उस पर छलांग लगाती और तेज नुकीले दांतों से काट कर भाग जाती। लोगों ने डर के मारे आना छोड़ दिया और चंपा का नाम खौफ की अलामत बन गया। खुद मेरे लिए मेरा अपना ही घर बेगाना बन गया। मैं जब भी वालदा से मिलने जाती पहले किसी बच्चे से उनको अंदर खबर भिजवाती। वालदा या मेरी छोटी बहन हाथ में छड़ी लेकर आती और अपने साथ मुझको अंदर ले जाती। जितनी देर मैं मौजूद रहती चंपा का गुस्सा और बेचैनी काबिल दीद होती। वालदा ने कई बार मेरे हाथ से चंपा को खाने की चीजें दिलवाने की कोशिश की ताकि चंपा मुझसे मानूस हो जाए, मगर चंपा हर बार गुस्से से मेरे हाथों पर पंजा मार कर भाग जाती और चीज को नीचे गिरा देती। ये मामला शायद यूं ही चलता रहता अगर दरमियान में मेरे वालिद ना आ जाते। वालिद कारोबार के सिलसिले में बम्बई में रहते थे और लखनऊ के चक्कर लगाते रहते थे। वालदा चूंकि दमे की मरीजा थी और बम्बई की मरतूब आबोहवा उनको माफिक नहीं आती थी, इसलिए उनका मुस्तकिल क़याम लखनऊ में रहता था। घूमने की गरज से वो महीना 2 महीने के लिए बम्बई चली जरूर जाती थी, मगर मुस्तकिल रिहाइश लखनऊ ही में थी। वालिद क्या है कि चंपा में और उनमें बाकायदा ठन गई। वालिद का आंगन में निकलना मुश्किल हो गया। वो जब भी बाहर आते बाजी अम्मा या नफीस छड़ी लिए साथ होती और अगर गलती से कहीं वो अकेले निकल आते तो चंपा बलाए नागहानी की तरह न जाने की डर से उन पर छलांग लगाती और काट कर भाग जाती। बाजी अम्मा सख्त परेशान थी। उनकी समझ में न आता था कि वो क्या करें। चंपा किसी तरह वाले से दोस्ती या मसालेहत पर आमादा न थी। उधर वाले साहब का बाहर निकलना बंद था। वो जब भी आंगन में वुजू करते होते चंपा चिल्ला चिल्ला कर आंख मचा देती। वालिद ने कई बार उसको स्लीपर खींचकर मारी, मगर हर बार वो उछक कर दरख्त पर चढ़ जाती थी और ऊंची शाख पर बैठकर वालिद को शौकी से देखते हुए किट किट किए जाती, गोया उनको चिढ़ा रही हो। आखिर वालिद का सबर जवाब दे गया और उन्होंने वालदा को वार्निंग दे दी कि चंपा को कहीं भी पिघवाओ वरना मेरे हाथ से मारी जाएगी। वालदा बेचारी अजीब मखमसे में गिरफ्तार थी। तंग आकर उन्होंने यही फैसला किया कि किसी तरह चंपा को यहाँ से कहीं और भेज दिया जाए। उन्होंने चंपा को आंगन में आकर आवाज दी। वो खुशी खुशी शाखों से उलझती उनके सामने आ गई।
والدہ نے एक अखरोट उसको दिखाकर हाथ में पकड़े हुए कपड़े के बड़े से थैले में डाला। चंपा कूद कर थैले के अंदर चली गई। उन्होंने थैले का मुंह मजबूती से एक सुतली से बांध दिया और एक बच्चे को देकर कहा कि वो थैला ले जाए और घर से दूर किसी दरख्त के पास उसका मुंह खोल दे ताकि वो थैले से निकलकर दरख्त पर चली जाए। बच्चे ने जब दरख्त के पास जाकर थैला खोला तो चंपा उचक कर बाहर निकली। पहले तो वो हैरान निगाहों से इधर उधर देखती रही, फिर दरख्त पर चढ़ गई। बच्चे जब चंपा को छोड़कर आने लगे तो कुछ दूर तक तो चंपा ने उनका पीछा भी किया, मगर जब एक कुत्ते ने उसको दौड़ाया तो वो वापस दरख्त पर चली गई। वालिदा कई दिन तक उदास रहीं। बच्चे बराबर खबरें लाते रहे कि वो जब भी जाकर चंपा को आवाज देते हैं या खाने पीने की चीजें दिखाते हैं, चंपा भाग कर आ जाती है। बाजी अम्मा जब भी उसकी बातें सुनती उदास हो जाती। वो अक्सर बच्चों के हाथ उसे खाने पीने की चीजें भेज देती थीं। कुछ अरसे के बाद चंपा ने आवाज पर आना छोड़ दिया। वो दरख्त पर रहने वाली दूसरी गिलहरियों से घुल मिल गई थी। इस वाकये को आज 4 साल का अरसा हो गया है। पता नहीं चंपा अब भी जिंदा है या अपनी उम्र तबई को पहुंचकर खत्म हो गई, मगर उसकी बातें, उसकी यादें आज भी जिंदा हैं। कैसी अच्छी कहानी है। अच्छा इंतजार हुसैन साहब, आप बताइए कि मिसेस तौफीक खान की इस कहानी में आपको क्या खूबी नजर आई? साहब ये कहानी ये गिलहरी के गिर्द घूमती है ये कहानी, और गिलहरी को जिस तरीके से इसमें पेश किया गया है तो मुझे अपना पूरा बचपन जिस तरीके से मेरा गिलहरियों से रिश्ता रहा है वो सब मेरे सामने आ गया। और गिलहरी एक ऐसा यानी मखलूक है जिसका हमेशा से मुझे एहसास रहा कि इसका तर्ज अमल कुछ इंसानी तर्ज अमल से बहुत करीब होता है। तो ये बात मुझे जिस तरीके से ये कहानी चली है और बढ़ी है और क्या है उसका गिलहरी का जो तर्ज अमल है, जो बिहेवियर है, वो बहुत मुझे अपील कर रहा है इस कहानी में। तो मेरे ख्याल में अच्छी कहानी बनी है। तो भाई ये हुई 3 मुंतखब कहानियाँ, अब रह गई 2, वो हम अगले हफ्ते पर से सुनाएंगे। इसके अलावा 25 मुंतखब कहानियाँ और भी हैं, वो भी बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ लिखने वालों के नामों का ऐलान हम ऐसा नहीं कर सकते, वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन अगले हफ्ते हम बाकी 25 कहानियाँ लिखने वालों के नामों का ऐलान करेंगे और उनमें से भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हम बाद में पढ़ के सुनाते रहेंगे। और आप बताइए, अच्छी कहानियाँ लिखने वालों को इनाम क्या मिलेगा? ये ऐलान भी हम अगले हफ्ते करेंगे इंशाअल्लाह। और जो लिखने वाले फेल हो गए हैं यही नहीं, हकीकत ये है दुल्हाई के कोई फेल नहीं हुआ है, सबने अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। अलबत्ता जो लिखने वाले इस बार इनाम ना पा सके, हमें यकीन है अगले मुकाबलों में वो पाला मारेंगे मेरी तरह। अच्छा भाई, तो अब हम सबको अगले हफ्ते तक इजाजत दो। खुदा हाफिज।